Surrender yourself to God. آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم خدا کے حضور اپنے آپ کو سپرد کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ سبھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں. اور میری گزارش ہے کہ آپ سبھی اپنے موبائل کے سوئچ جو ہے وہ آف کر دیجئے اور کوئی بھی آپس میں گفتگو نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ نہایت احترام اور عزت کے لائق ہے. ہاللیلویہ. اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا. کلام خدا میں سے میرے ساتھ دیکھیے گا زبور 26واں اور اس کی دوسری آیت. زبور نمبر 26 اور اس کی دوسری آیت مقدسہ کو ہم دیکھیں گے کلام خدا میں سے. اے خداوند مجھے جانچ، اے خداوند مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو میرے دل و دماغ کو پرکھ. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. ایک آواز میں کہیں گے آمین. یہ زبور نویس کا بڑا اہم زبور ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اے خداوند مجھے جانچ اور آزما اور میرے دل و دماغ کو پرکھ. خداوند کب ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ خدا کب ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. میرے ذہن میں جب ہم خدا کو اجازت دیتے ہیں تو ہمارا خدا تب ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. کب کرتا ہے کام؟ جب ہم اجازت دیتے ہیں. اپنی زندگی کا اختیار اسے دیتے ہیں. بے شک وہ اختیار کل رکھنے والا ہے، قادر مطلق خدا ہے، ہمارا کریٹر ہے، ہمارا بنانے والا ہے. اس کے باوجود اس نے ہمیں جو آزاد مرضی دی ہے، جو فری ول دی ہے، اس نے وہ کبھی بھی ہماری اجازت کے بغیر ہمارے اوپر کوئی چیز تھوپتا نہیں. ہمارا خدا جو ہے وہ جبر کا خدا نہیں ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ زبردستی کا خدا نہیں ہے. ہمارا خدا ایسا خدا ہے کہ جب ہم اسے اجازت دیتے ہیں تب ہماری زندگی میں وہ اختیار رکھتا ہے. ویسے وہ قادر مطلق خدا ہے، ویسے وہ اختیار رکھتا ہے، ویسے ہم اس کی کریشن ہے، لیکن قادر مطلق ہونے کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اجازت دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے، وہ ہماری زندگیوں کو پرکھے، وہ ہماری زندگیوں کو جانچے، وہ ہماری زندگیوں کو آزمائے. اور یہی زبور نویس نے کیا ہے اور اس نے کہا کہ اے خداوند مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ. جانچ کا مطلب ہے پرکھنا، پڑتال کرنا، اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا یا شناخت کرنا اس کے معنی ہے. اور ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں پوری پڑتال کے ساتھ نہیں جانتا. مختلف اور مختصر چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن جس کو داؤد زبور نویس دعوت دے رہے ہیں کہ اے خدا مجھے جانچ، وہ طے تک ہمیں جانتا ہے. ہاللیلویہ. وہ ان ڈیٹیل ہم سے واقف ہے، ہمارے خیالات سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ زبور نویس کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے جانچ اور آزما. کتنا بڑا شخص ہوگا جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، خدا کو دعوت دی ہے کہ خدا مجھے جانچ اور آزما. کیا آج ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ ہم خدا کو کہہ سکیں کہ خدا مجھے جانچ اور مجھے آزما؟ تبھی بندہ کہہ سکتا ہے جب کسی لیول پر کھڑا ہے. ہاللیلویہ. اور ہم زبور نویس کا لیول چیک کر سکتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ جب اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، سپرد کرتا ہے،
तो इसका मतलब है कि वो खुदा को इजाजत दे रहा है अपने अंदर काम करने की, अपनी जिंदगी में काम करने की खुदा को इजाजत दे रहा है। जब हम सरेंडर करेंगे, खुदा के सुपुर्द अपने आप को करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम खुदा को ये इजाजतनामा दे रहे हैं कि खुदा मेरी जिंदगी के अंदर काम कर। और दूसरा इसका मतलब ये होगा कि हमने उसको इजाजत दे दी। इसका मतलब होगा कि खुदा ने काम करना शुरू कर दिया हमारी जिंदगी के अंदर। जब हम पहला काम हमारा क्या है, हमने उससे इजाजत दे दी है, और दूसरा काम यह है कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करना शुरू होगा। क्योंकि खुदा जो है वो इंसान नहीं है कि देर करेगा। खुदा आपके कहने की देर होगी तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। आप इकरार कर देंगे तो खुदा आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आप उसके नाम के आगे झुकेंगे, आप कहेंगे कि खुदा मुझे आजमा, तो खुदा जो है वो आपकी जिंदगी को जो है उस लेवल पर लेकर आना शुरू हो जाएगा उसी वक्त। और ज़बूर नवीस कहते हैं कि खुदा मुझे जांच। और किसी शायर ने कहा है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। जहां दरिया समुद्र में मिला, दरिया नहीं रहता। बड़ा खूबसूरत शेर है। आपने देखा होगा कि नहरें दरियाओं में गिरती हैं, और दरिया जो है वो समुद्र में जब गिर जाते हैं तो उनकी अपनी पहचान मिट जाती है। रहती है कोई पहचान, तब तक उनकी पहचान होती है जब तक वो समुद्र में नहीं गिरते। नहरें तब तक रह रहती हैं जब तक उनका पानी दरियाओं में नहीं गिरता, और दरियाओं की पहचान तब तक होती है जब तक उनका पानी समुद्र में नहीं गिर जाता। उसके बाद सारा जो है वो समुद्र ही कहलाता है। और याद रखें कि हमारी पहचान तब तक है जब तक हम उसमें मिल नहीं जाते। हालेलुया। ज़बूर नवीस कहता है कि ऐ खुदा मुझे जांच। वो अपनी हस्ती की परवाह नहीं करता। वो चाहता है कि उसकी हस्ती जो है इतनी इंटीमेसी उसमें हो जाए, इतना इंटीमेट रिलेशन उसका हो जाए कि उसके अंदर वो समा जाए। हालेलुया। और वो खुदा को इजाजत देता है कि ऐ खुदा मुझे आजमा, मेरे दिलो दिमाग को परख, मुझे जांच, मुझे देख। एक और ज़बूर देखेंगे, ज़बूर नंबर 35, उसकी 24 आयत। क्योंकि ये बड़ी जुर्रत का और बड़ी दलेरी का ये फैसला है जो हर कोई शख्स नहीं करता। और ज़बूर नवीस जो है वो खुदा को दावत दे रहा है कि खुदा मुझे जांच, मुझे परख। और मामूली अदालत में नहीं, आप देखिएगा इसमें कि कहां पर वो अपने आप को पेश कर रहा है खुदा के आगे। 35 उसकी 24 आयत। अपनी सदाकत के मुताबिक, गौर कीजिएगा, अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर, मेरी अदालत कर। आए खुदावंद मेरे खुदा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा। ज़बूर नवीस कहते हैं कि अपनी सदाकत के मुताबिक, यानी अपनी सच्चाई के मुताबिक मेरी अदालत का। उसकी सच्चाई जो है वो जमीनी जो जज है, जो जस्टिस है, उन जैसी नहीं है। उसकी सच्चाई जो है उसका म्यार बहुत बुलंद है, बगैर किसी रियायत के वो अदालत करता है। और ज़बूर नवीस कहते हैं अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी क्या कर। ऐसे नहीं खुदा ने कह दिया कि दाऊद मेरे दिल के मुवाफिक मुझे मिल गए। दाऊद ने अपने आप को रिफाइंड खुद नहीं किया। उसने अपने आप को खालिस बनाने के लिए अपने आप को खुदा की अदालत में, सदरे अदालत में उसने खड़ा कर दिया है। और कहते हैं कि अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर। ये नहीं कि खुद ही मुजरिम है और खुद ही जो है वो मुंसिफ बन जाए। जब हम अपने आप को कटहरे में खड़ा करते हैं, अपने आप का एहतसाब करते हैं, तो बेशुमार चीजें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। नहीं, ये भी गलती नहीं है, ये भी गलती नहीं है, ये भी गलती नहीं है, सारी गलतियां कोई नहीं। लेकिन खुदा की जो अदालत है
اس میں آپ کی رتی بھر غلطی بھی جو ہے وہ واضح ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. ہاللیلویہ. زبور میں اس کہتا ہے کہ اے خدا مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ، اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر. منصف، ایسا منصف جس کی عدالت میں خالص انصاف متوقع ہے. عام عدالت نہیں ہے، یہ خدا کی صداقت کی سچائی کی عدالت ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اور خدا اسی لیے داؤد سے خوش ہے اور کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے. ہاللیلویہ. پیورٹی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مگر آج کا انسان، آج کے ایماندار جو ہیں، ان کا لیول کیا ہے؟ امثال 16واں باب اور اس کی دوسری آیت. ایک یہ ایماندار ہے، مقدس داؤد ہے، خدا کا سورما ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا ہے اور خدا کو کہتا ہے کہ مجھے جانچ آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ، یعنی کہ کوئی حصہ بچے نہیں. جتنے خاص ہمارے جسم کے اندر حصے ہیں ان کو پرکھ. 16واں باب اور اس کی دوسری آیت. عام انسان، عام ایماندار جو ہے وہ کیسے پرکھتا ہے اپنے آپ کو؟ انسان کی نظر میں، انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک، اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے. لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے. آپ نے غور کیا؟ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں، یعنی کہ اس کے سارے طریقہ کار، اس کا چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ملنا جلنا، اس کے سارے کام جو ہے وہ راست ہیں. لیکن کلام فرماتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ روحوں کو جانچتا ہے. کن کو جانچتا ہے؟ خدا ٹوپی نہیں پہنتا، خدا خوبصورت کپڑوں کو نہیں دیکھتا. خدا جو ہے وہ آپ کی زبان سے واقف ہے، لیکن خدا جو دیکھتا ہے وہ کلام فرماتا ہے کہ روحوں کو جانچتا ہے، جن کو عام انسان یا دوسرا انسان نہیں جان سکتا. لیکن کلام فرماتا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے جی؟ روحوں کو جانتا ہے. ایک اور حوالہ دیکھیے، امثال 21واں باب اور اس کی دوسری آیت. یہ انسان کا اپنے بارے میں، یہ اس کی عدالت کا جس میں وہ خود ہی مجرم ہے اور خود ہی وہ منصف ہے. وہاں پر اس کا معیار کیا ہے اپنے آپ کو جج کرنے کا؟ اسی لیے تو روتے رہتے ہیں ساری عمر کہ خدا ہمیں بلیس نہیں کر رہا، خدا ہمیں برکت نہیں دے رہا، فلاں کو اتنی برکت دے دی ہے، ہمیں برکت نہیں دی. وہی برکت تو کیڑی چیز سے دبی؟ وہ خالص مانگتا ہے. پچھلے دنوں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا خالص چیزوں پر برکت دیتا ہے. خدا کسی پورا کرکٹ پر جو ہے وہ برکت نہیں دیتا. 21واں باب اور اس کی دوسری آیت. انسان کی ہر ایک روش، انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، اس کی نظر میں راست ہے، اور خداوند دلوں کو جانچتا ہے. اور خداوند دلوں کو جانچتا ہے. پہلے باب میں ہم نے سیکھا کہ روحوں کو جانچتا ہے. دوسرے باب میں لکھا ہے کہ خدا دلوں کو جانچتا ہے. جہاں سے بدی کے منصوبے بنتے ہیں، جہاں سے سارا سسٹم جو ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے، خدا ان چیزوں کو جانتا ہے. دلوں کو جانچتا ہے، روحوں کو جانچتا ہے. لیکن داؤد کہتے ہیں کہ خدا مجھے جانچ اور آزما. اور اس عدالت میں وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے جہاں سے دنیا بھاگتی ہے، دنیا جان چھڑاتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کا. اپنے آپ کو منصف نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس نے منصف جو چنا ہے وہ چوٹی کا منصف ہے. وہ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں ہے یا کسی اور ملک کا چیف جسٹس نہیں ہے. اس نے جو جسٹس چنا ہے وہ ایسا جسٹس ہے جس کی عدالت میں 2 نمبر فیصلے نہیں ہوتے. اس کی عدالت میں سچائی پر مبنی اور معیار پر پورے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے داؤد کہتے ہیں اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر.
और ज़बूर नवीस इसीलिए खुदा का दिल पसंद सूरमा खादिम है। छोटी उम्र में चैलेंज करने वाले शख्स को इसने जेर किया और उसने कहा कि मैं किसके नाम से आता हूं? खुदावंद के नाम से आता हूं, किसी इंसान के नाम पे नहीं आता, किसी मुल्क के नाम पर नहीं आता, किसी फौज के नाम पर नहीं आता। उसने कहा मैं खुदावंद के नाम से आता हूं। और उसने चैलेंज के साथ उस दुश्मन को जेर किया। उसने कहा कि मैं तेरी तलवार से तेरी गर्दन जो है वो तेरे तन से जुदा कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। वो शख्स जिसको जो है वो लोहे का लिबास जो है उसके लिए ज्यादा वजनी है, उसको वो तलवार उठा नहीं सकता, वो उसकी फौजी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है उसने ये साबित किया कि खुदा का चुना हुआ शख्स, खुदा का मंसूब जो है वो काया पलट सकता है, वो जंग जीत सकता है। खा उसके पास जदीद असला ना हो फिर भी वो आम हथियारों से जो है वो जंग जीत सकता है। और ये तभी है जब उसके हुजूर से रिफाइंड किए हुए लोग सामने क़यादत के लिए आते हैं। हालेलुया। ज़बूर नंबर 139 और 123 है। आम इंसानों का और जो सूरमा खादिम बनते हैं, जिनका नाम दुनिया लेती है, जिनको याद दुनिया करती है, वो ऐसे नहीं बन जाते, बल्कि वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अच्छी अदालतों से गुजर कर आते हैं, रिफाइंड होकर आते हैं। ज़बूर नंबर 139 और उसकी 23वीं है। ऐ खुदा तू मुझे जांच, ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और मेरे ख्यालों को जान ले। आगे पढ़ेंगे। और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अपनी राह में ले जा। ज़बूर 26 में भी ज़बूर नवीस ने कहा कि मुझे जांच आजमा, मेरे दिलो दिमाग को परख। और 139वें ज़बूर में भी कहता है कि ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा, मेरे ख्यालों को जान ले, और देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं। कहता है कि कोई तरीका कार जरा नापसंद तेन होए वो तो नहीं। और देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अपनी राह पर ले जा। ये नहीं कि वो बार बार बरगश्ता हो जाता था, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि 26 ज़बूर में उसने ये कहा कि खुदावंद मुझे परख, और उसके बाद 139वें ज़बूर तक वो बरगश्ता हो गए। ऐसी बात नहीं है। उसका मतलब ये था कि रिफाइंड इस तरीके से हो जाओ, सफाई इस तरीके से हो जाए कि किसी कोने कोचे में कोई चीज बच ना जाए। इस तौर पर खुदा चाहता है कि उसके हुजूर में अपने आप को पेश किया जाए, जिस तरह ज़बूर नवीस ने अपने आप को पेश किया। और ना सिर्फ एक बार किया बल्कि 2 बार, बल्कि बार बार उसने खुदावंद के हुजूर में अपने आप को पेश किया कि ऐ खुदा मुझे जांच, मुझे आजमा, मेरे दिलो दिमाग को परख, और देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं। और देखना में ये है कि किस अदालत में और किस मुंसिफ के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं, जो जिस्मानी नहीं है, जो दुनियावी नहीं है। उस मुंसिफ के सामने उसने अपने आप को पेश किया है जो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। और जिसकी अदालत सच्चाई पर मबनी है, जिसके फैसले सच्चाई पर मबनी है, उस अदालत में पेश किया है। और बहुत से लोग हैं जो इससे दूर भागते हैं, उसकी अदालत से भी दूर भागते हैं, उससे भी दूर भागते हैं, ऐसी फेलोशिप से भी दूर भागते हैं। मगर याद रखें कि उसकी अदालत से दुनिया का कोई शख्स जो है वो बच नहीं सकता, छुप नहीं सकता, क्योंकि ज़बूर नवीस ने लिखा कि तेरी नजर से भागकर कहां जाऊं, अगर पताल में छुप जाऊं तो तू वहां भी है, अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां भी है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहां हम छुप सकते हैं, जहां हम उससे भाग सकते हैं, जहां उसकी हजूरी से जो है वो नजरअंदाज हो सकते हैं।
कोई ऐसा हिस्सा नहीं है। यूना ने भी भाग कर देख लिया, यूना को भेजा उसने नैनवा की तरफ, लेकिन वो चला तरसीस की तरफ गया, लेकिन खुदा की मर्जी हमेशा साबित आती है, खुदा भेज ही दिया, खुदा की नजर से वो बच नहीं सका। ज़बूर नंबर 139 उसकी पहली 5 आयत हम देखिए। खुदा से हम छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। गौर कीजिएगा, जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा उठना बैठना, उठना बहना जानता है, किथे बहंदे हो, किदे नाल बहंदे हो, वो तेनू पहचानदा भी है। ठीक है, तू मेरे ख्यालों को दूर से समझ तू लेता मेरे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता है। तो मेरे ख्यालों को वो दूर ही से, ये नहीं कि उसे पास आकर देखना पड़ता है, या आपके मुंह से जो है वो कंबल को हटाकर देखना पड़ता है, उसको दूर ही से आप नजर आ जाते हैं। जहां भी आप छुपे हैं, सातवीं तह में भी आप छुपे हैं, तो आपको वो देखता है। जी, मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। छानबीन करता है। बाहर भी ते घर भी छानबीन करता है, वो सारी चीजें उसके नोटिस में, और मेरी सब रविशों से वाकिफ है, मेरे सारे तरीकाकार से, मेरे सारे मेथड से वो वाकिफ है, वो जानता है, देखता है और आजमाता भी। देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावन पूरे तौर पर ना जानता। ज़बूर नवीस कहते हैं कि कोई ऐसा लफ्ज नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि जैसे तू ना जानता। तू सारी चीजों से वाकिफ है, क्योंकि वो आजमाया गया, परखा गया, और उसने इस बात का बरमला इकरार किया, और उसने कहा कि तूने मुझे जांच लिया, तूने मुझे पहचान लिया, तू मेरा उठना और बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालों को दूरी से समझ लेता है, तू मेरे रास्ते और ख्वाबगाह की छानबीन करता है, पड़ताल करता है, जांचता है। सारा कंट्रोल याद रखे उसके हाथों के अंदर है। अगर एक बादशाह के लिए वो ये कह सकता है कि मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, तो आपके लिए क्यों नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं, हम सब के लिए वो क्यों ये नहीं कह सकता कि मेरे दिल के मुआफिक मिल सकते, बशर्ते कि हम उस ज़बूर नवीस की तरह अपने आप को पेश करें, जिसने ये कहा कि ऐ खुदावंद मुझे जांच और आजमा और मेरे दिलो दिमाग को पर। उसने अपने आप को पेश किया और खुदा ने उसके लिए फरमाया कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। आज हमारे लिए क्यों नहीं ये लफ्ज, हमारे लिए लफ्ज हो सकते हैं बशर्ते कि हम अपनी राहों से फिरें, अपने तरीकाकार को चेंज करें, अपने मेथड को चेंज करें, और जब हम चेंज करेंगे तो वो उसी खुशी के साथ, इस तरह उसने दाऊद के बारे में कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, आपके लिए भी कह सकता है, बशर्ते कि हम उस अदालत के लिए जो सच्चाई की अदालत है उसके लिए अपने आप को सुपुर्द करें, और अपने आप को खुदा के ऐसे सुपुर्द करें जैसे ज़बूर नवीस ने खुदावंद के सुपुर्द किया है। तो खुदा आपके लिए सारी बरकतें रखता है, खुदा आपके लिए सारे वो मुकाम रखता है, खुदा आपके लिए वो सारे रिवॉर्ड रखता है, और आपके लिए वो सारे इनाम रखता है जो दाऊद बादशाह को उसने दिए, जैसा मुकाम दाऊद बादशाह को दिया। और याद रखें कि वो एक ऐसा शख्स था जो भेड़े चराने वाला था, अयाली था, गडरिया था, चरवाहा था, लेकिन चरवाहे को कोई अगर बादशाह बना दे ये छोटी बात नहीं है। और अगर हम में से कोई चरवाहे से बादशाह, छोटे लेवल से बड़े लेवल पर, छोटे मकाम से बड़े मकाम पर जाना चाहता है, तो फिर आपको मुकद्दस दाऊद जैसा वे अपनाना पड़ेगा, जिसने कहा कि खुदा मुझे जांच
مجھے آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ، اور جب ہم اسے یہ اتھارٹی دیں گے، جب اسے اختیار دیں گے تو وہ بہتر طور پر ہماری صفائی کرے گا، بہتر طور پر ہمیں وہ مقام دلائے گا جو مقام اس کی نظر میں بھلا ہے اور اتم ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے اور اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکت۔